شادی کی پہلی رات شوہر نے کہا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، پر اس لڑکی نے مجھ سے شرط رکھی تھی کہ پہلے میں تم سے شادی کروں اور پھر تم ہی میری دوسری بیوی کے لیے اس کا رشتہ لے کر جاؤ گی۔ یہ سنتے ہی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر میں نہ مانی تو طلاق دے دے گا۔ مجھے بہت رونا آیا کہ اس لڑکی نے میری زندگی کیوں برباد کی۔ میں اگلے دن ہی اپنے شوہر کا رشتہ لے کر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو مجھے میرے ہی میکے لایا تھا، لیکن پاؤں تلے زمین جب کھسکی جب اپنی ہونے والی سوتن کو دیکھا، کیونکہ وہ تو میری ہی ابیحا کی دوستی رمیز سے اس وقت ہوئی جب وہ ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ ابیحا اسکوٹی چلا کر اکیلی چلی جاتی تھی۔ اس نے جلدی میں ایسی جگہ اسکوٹی پارک کر دی جہاں سے رمیز اپنی گاڑی نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ اپنی چند چیزیں لینے آیا تھا اور وہ جلدی سے لے بھی چکا تھا اور اب اتنی دیر سے اس اسکوٹی والی کا انتظار کر رہا تھا، مگر ابھی تک اسکوٹی والی واپس نہ آئی تھی۔ اسے پیاس لگی تو اس نے سوچا کہ جا کر جوس پی لوں۔ وہ جلدی میں کھانے پینے کے پورشن کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی ٹکر ابیحا سے ہو گئی اور اس کا جوس کا گلاس گر گیا۔ رمیز نے یکدم معذرت کی اور کہا کہ اسے بہت پیاس لگی ہوئی تھی، وہ جلدی میں تھا، مگر کسی نے میری گاڑی کے آگے اسکوٹی کھڑی کر دی ہے اور میں کب سے اس مصیبت کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابیحا ہنستے ہوئے بولی، جی وہ مصیبت میں ہی ہوں۔ رمیز شرمندہ ہو کر بولا، سوری۔ ابیحا نے کہا، سوری تو مجھے بولنا چاہیے۔ ابیحا جینز کی پینٹ پہنے، اوپر شرٹ اور گلے میں دوپٹہ ڈالے، کندھے پر بڑا سا پرس لٹکائے، ہاتھوں میں کالا چشمہ پکڑے ہوئے تھی۔ ابیحا نے، قصور میرا ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا پڑا، مگر اس کا جرمانہ بھی میں بھروں گی، آپ کو جوس یا آئس کریم کھلاؤں گی۔ وہ بولا، نہیں، میں نے آپ کا جوس گرایا تھا تو میں جوس لے کر آتا ہوں، آپ سامنے خالی ٹیبل پر جا کر بیٹھے۔ وہ جوس لینے گیا تو وہ سوچنے لگی، ویسے یہ دیکھنے میں بھی اسمارٹ ہے، پڑھا لکھا بھی لگ رہا ہے۔ ڈیڈ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ کوئی بوائے فرینڈ بنایا، تو میرا جواب ہوتا تھا، نہیں ڈیڈ، ابھی تک کوئی اپنے معیار پر پورا نہیں اترا۔ وہ لڑکوں کے اسکول کالج میں پڑھتی رہی، مگر اس نے کبھی کسی سے دوستی نہیں کی۔ اس کے ڈیڈ نے اسے کہا تھا کہ بیٹی، شادی کے لیے تمہیں اگر کوئی پسند آئے تو بتا دینا، کیونکہ زندگی تم نے گزارنی ہے۔ میں تنگ نظر نہیں ہوں۔ ماں اکثر اسے کہتی کہ تمہیں تمہارا باپ انگریزوں کی طرح پال رہا ہے تو تم اپنی حدیں کراس نہ کرنا۔ اس بات کو یاد رکھنا کہ اتنی آزاد خیالی ہمارے معاشرے میں نہیں چلتی، مگر تمہارے باپ کو کوئی احساس کمتری ہے، شاید اسی لیے وہ تمہیں ہر وقت الٹی باتوں کی پٹیاں پڑھاتے رہتے ہیں۔ مجھے ہر وقت گنوار اور پینڈو، جاہل، نہ جانے کیا کیا سمجھتے رہتے ہیں۔ ماں نے ابیحا کو بتایا کہ ان کو ماڈرن لڑکیاں پسند تھی۔ دماغ میں اسٹیٹس کا بھوت سوار تھا۔ میں سیدھی سادی تھی۔ مجھ سے والدین کے کہنے پر شادی تو کر لی، مگر مجھے پینڈو کے تانے ساری زندگی دیتے رہے اور وہی شوق تمہیں ماڈرن بنا کر پورا کرنے لگے۔ ابیحا سوچوں سے نکل آئی جب رمیز 2 آئس کریم کے کپ اٹھائے ہوئے آیا۔ اس نے کہا کہ میرا نام رمیز ہے اور آپ کا نام؟ اتنے میں ابیحا کا فون بجا تو وہ بولی، حمیرہ۔ رمیز سمجھا کہ اس کا نام حمیرہ ہے۔ ابیحا نے کہا، بس آتی ہوں۔ ابیحا نے رمیز سے کہا، آپ کی آئس کریم کا بہت شکریہ، میری موم میرے لیے جلدی فکر مند ہو جاتی ہیں۔ وہ جلدی آئس کریم کھانے لگی۔ رمیز نے کہا کہ میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ابیحا جلدی سے بولی، میں ضرور برا مناؤں گی۔ ابھی آپ دوستی کرنے کی آفر کریں گے؟ اچھی طرح کان کھول کر سن لیں کہ میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح آئس کریم کھا رہی ہوں۔ میں صرف اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اگر آپ کو میں پسند آ گئی ہوں تو سیدھا میرے گھر رشتہ بھیجے۔ وہ مسکرا کر بولا، میں نے بھی بالکل آپ کی طرح کبھی بھی کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھا۔ میرا بھی یہی ماننا ہے کہ جو پسند ہے اس کے گھر سیدھا رشتہ بھیجو۔ میں یہی آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ کہیں آپ بک تو نہیں ہیں؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی، اگر بک ہوتی تو کیا آپ کے ساتھ ایسے بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی ہوتی؟ رمیز بولا، سوری، اچھا اگر میں یہ کہوں کہ آپ سے میں متاثر ہوا ہوں، مجھے ایسے ہی صاف انداز میں کھری بات کرنے والی لڑکی کی تلاش تھی، تو کیا میں آپ کے گھر رشتہ بھیج سکتا ہوں؟ آپ مجھے گھر کا ایڈریس وغیرہ تو بتائیں،
اپنا فون نمبر تو دے، کیا میں آپ کو حور کہہ سکتا ہوں؟ وہ بولی، رشتہ ہونے کے بعد۔ وہ مسکرا کر بولا، آپ لوکیشن تو بھیجیں۔ دونوں میں نمبروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ بہت جلدی میں تھی، گھر سے ماں کی بار بار فون کالز آ رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی اس نے اسکوٹی سٹارٹ کی اور رمیز نے کہا، اوکے میں کل ہی کوشش کرتا ہوں گھر والوں کو بھیجنے کی۔ ابیحا گھر پہنچی تو اپنی پھوپھو کی بیٹی حمیرہ کو سب کچھ بتانے لگی۔ حمیرہ نے کہا، ابیحا اپنے ڈیڈ کو کچھ مت بتانا، اور یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں آزمانے کے لیے پوچھ رہے ہوں کہ کوئی بوائے فرینڈ تو نہیں ہے، اور پھر بعد میں اس رشتے کے لیے نہ کر دے۔ ابیحا بولی، ٹھیک ہے۔ رات کو رمیز کا میسج آ گیا کہ اس نے گھر والوں سے بات کی ہے تو وہ اس اتوار کو آ رہے ہیں۔ ابیحا بہت خوش ہوئی۔ دونوں دیر تک فون پر دنیا جہاں کی باتیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کی پسند پوچھنے پر دونوں کی پسند بہت خوش تھے کہ ہماری آپس میں اچھی نبھے گی۔ اتوار میں ابھی پورا ہفتہ باقی تھا کیونکہ آج سوموار تھا۔ ابیحا بڑی بے چینی سے اتوار کا انتظار کر رہی تھی۔ ابیحا اس کی بے چینی دیکھ کر اس کو چھیڑتی رہتی کیونکہ وہ دن بہ دن رمیز کی دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ اتوار سے ایک دن پہلے وہ اپنے لیے نئی جینز کی پینٹ اور شرٹ لے کر آئی۔ حمیرہ نے اسے کہا، ابیحا تم سسرال والوں کے سامنے شلوار قمیض پہن کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ساس کو یہ لباس پسند نہ آئے۔ اگر تمہاری ساس کو یہ ڈریس پسند نہ بھی ہوا تب تم رمیز کو منا کر یہ ڈریس بعد میں پہن لینا۔ مگر وہ نہ مانی، بلکہ اس کے لیے بھی اس کی پسند کا نیا شلوار قمیض بھی لے کر آئی کہ بہن کے رشتے والوں کے سامنے میری بہن بھی اچھی لگنی چاہیے۔ حمیرہ ابیحا کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ حمیرہ کے والد کی وفات کے بعد حمیرہ کی ماں اور حمیرہ کو میکے والے اپنے گھر لے آئے۔ حمیرہ 15 سال کی تھی اور وہ ابیحا کی ہم عمر تھی۔ ابیحا اور حمیرہ میں بچپن سے بہت دوستی تھی۔ ابیحا حمیرہ کے آنے سے بہت خوش تھی۔ دونوں ایک ہی کمرے میں ایک ہی بیڈ پر سوتی تھی۔ دونوں کو ایک ہی کالج میں داخل کروا دیا گیا تھا۔ ابیحا کو اسکوٹی کا بہت شوق تھا۔ اسے باپ نے کالج آنے جانے کے لیے اسکوٹی لے کر دے دی اور وہ حمیرہ کو بھی بٹھا کر ساتھ لے جاتی۔ شروع میں حمیرہ بہت ڈرتی مگر پھر اس کی ڈرائیونگ سے مطمئن ہو گئی۔ ابیحا نے حمیرہ سے کہا، تم بھی سیکھ لو، مگر حمیرہ ڈرپوک ٹائپ لڑکی تھی، وہ نہ سیکھ سکی۔ ابیحا کے والد ابیحا اور حمیرہ میں کوئی فرق نہ رکھتے تھے، اپنی بہن اور بھانجی پر بھی جان دیتے تھے کیونکہ وہ بیوہ تھی اور اس نے دوسری شادی نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ ابیحا کی ماں اور حمیرہ کی ماں بچپن کی سہیلیاں اور کزنز بھی تھی، اس لیے جب حمیرہ کی ماں بیوہ ہوئی تو ابیحا کی ماں نے ان دونوں روایتی بھابھی اور مامی والا سلوک نہ کیا، بلکہ اپنی دوستی کی لاج رکھی اور ان کی بہت دل جوئی کی اور ان کو کھلے دل سے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی۔ ابیحا سے بڑی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ UK میں سیٹل تھا اور دوسری دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ابیحا سب سے چھوٹی اور باپ کی بہت لاڈلی بیٹی تھی۔ حمیرہ والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اتوار کے دن صبح سے ہی بہانے سے ابیحا گھر کی صفائی ستھرائی اور کھانے پینے کی چیزوں کو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ رمیز کے والدین اور شادی شدہ بہن اچانک آ گئے۔ گھر والوں نے مہمان سمجھ کر عزت سے بٹھایا، پھر وہ اپنے اصل مدعے پر آ گئے۔ بہن نے کہا کہ ہمیں آپ کی بیٹی حمیرہ بہت پسند آئی ہے۔ ہم نے اسے ایک مارکیٹ میں دیکھا تھا، ہم نے گھر کا پیچھا کیا اور اب سوالی بن کر آ گئے ہیں۔ گھر والوں نے حمیرہ کو بلایا۔ سادہ سی حمیرہ سادے سے لباس میں اپنے وجود پر اچھی طرح سے چادر لپیٹے ہوئے آئی۔ ساتھ ہی ابیحا جینز کی پینٹ اور شرٹ، گلے میں دوپٹہ، بال جدید طرز میں کٹنگ کیے ہوئے، ہیل پہنے اندر آئی۔ سلام کیا تو ابیحا نے دیکھا وہ حمیرہ سے بہت پیار سے پاس بٹھا کر باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رمیز کے لیے حمیرہ بہت پسند آئی۔ انہوں نے ابیحا کی طرف خاص دھیان نہ دیا۔ ابیحا نے دیکھا اس کے ڈیڈ اور رمیز کے ڈیڈ دونوں آپس میں کافی گھل مل کر باتیں کر رہے ہیں، اور ابیحا کی ماں اور حمیرہ کی ماں بھی رمیز کی ماں اور بہن سے بہت گھل مل کر ایسے فری ہو کر باتیں کر رہی ہیں جیسے برسوں سے جانتی ہو۔ حمیرہ ان کے درمیان بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بار بار حمیرہ کی تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں حمیرہ جیسی ہی بہو کی تلاش تھی۔ ابیحا چائے کی ٹرالی رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی کیونکہ
रमीज की माँ हुमैरा को अंगूठी पहनाने की पड़ा था। वो सोच रही थी कि रमीज के घर वाले तो उसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। रमीज अच्छा लड़का है। फुप्पो हर वक्त हुमैरा की शादी के लिए फिक्रमंद रहती थी। अब बहुत खुश थी। क्या करे, हुमैरा की मंगनी को वो इस मोड़ पर नहीं रोक सकती थी। रमीज की बेशुमार कॉल्स आ चुकी थी, मगर उसने ना कॉल पिक की ना ही उसके मैसेज का जवाब दिया। अब वो हुमैरा को कैसे राजी करेगी। हुमैरा परेशान हाल अंदर आई और उसे आकर कहने लगी कि वो उसे मंगनी की अंगूठी पहनाना चाहते हैं, मगर रमीज तुम्हें पसंद करता है और तुम रमीज को। अबिहा बड़ा जब्त करके मजाक वाले अंदाज में बोली, अरे पागल, कौन सा रमीज, ये तो मैं तुम्हें उल्लू बना रही थी। मैं अपनी दोस्त को फोन करती थी, कहो तो रमीज के नाम से सेव किए नंबर से उस सहेली रमीज की बात करवा दूं। मुझे क्या पता ये कौन लोग हैं। ये महज इत्तेफाक है कि किसी रमीज का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैंने तुमसे सब मजाक किया था। भला किसी रमीज का रिश्ता तुम्हारे लिए आया है। मैंने तुमसे सब मजाक किया था। भला मेरी इतनी जुर्रत किसी को बॉयफ्रेंड बनाने की। मम्मा मुझे कत्ल ना कर दे। तोबा तोबा, तुम जाओ और मजे से मंगनी की अंगूठी पहनो, मैं मूवी बनाऊंगी। वो हैरत से बोली, सच अबिहा? अबिहा बोली, ठहरो, पहले मैं तुम्हारी अपने बॉयफ्रेंड रमीज से बात करवा दूं। अब तो ये नाम हटाना पड़ेगा, आखिर वो मेरे बहनोई बनने वाले हैं और तुम शक करती रहोगी। हुमैरा उसे प्यार से एक थप्पड़ मारकर बोली, बहुत बुरी हो, उल्लू बनाती रही हो मुझे। अबिहा ने जल्दी से रमीज का नंबर और मैसेजेस वगैरह डिलीट करके उसे ब्लॉक कर दिया। हुमैरा को घर वालों ने अंगूठी पहनाई तो वो वॉशरूम का बहाना करके आ गई। उसने माँ से कहा कि उसका पेट खराब हो गया है, इसलिए वो नहीं आ सकती। जब हुमैरा को अंगूठी पहनाने लगे और जब उसकी मूवी और तस्वीरें बनाने लगे तो हुमैरा की माँ ने कहा कि प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा, निकाह से पहले मुझे मूवी या तस्वीरें वगैरह बनाकर ले जाना पसंद नहीं है। रमीज के वालिद बोले, बिल्कुल बजा फरमाया आपने बहन जी, हमें आपकी एहतियात अच्छी लगी। रमीज ने देखा जब अबिहा ने उसे ब्लॉक कर दिया है तो वो बहुत परेशान हुआ और बहन से फोन करके पूछने लगा कि हुमैरा खुश तो है ना। उसकी बहन ने कहा, हाँ बहुत खुश है, मगर उसकी माँ निकाह से पहले मूवी और फोटो नहीं बनवाने दे रही। तब रमीज तसल्ली में हो गया कि उसकी माँ ऐसी ही है, हुमैरा ने बताया था, इसीलिए हुमैरा ने माँ से डरकर मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। रमीज को शादी की जल्दी थी, इसलिए घर वालों ने उसका निकाह अगले हफ्ते रख दिया और इस हफ्ते शादी मुकर्रर कर दी गई। हुमैरा उनके जाने के बाद खुशी खुशी उसे अपने हाथ की अंगूठी दिखाने आई। अबिहा ने उसे मुबारकबाद दी। वो लेटी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। वो वॉशरूम में जाकर खूब रोई थी। वो ऐसे मकाम पर खड़ी थी जहाँ पीछे कुआं और आगे खाई थी। उसने हुमैरा को बताया कि अचानक से अब कदरे फर्क है, दही में केला डालकर खाया है और मोशन की गोली खाई है। हालांकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। सब घर वाले परेशान हो गए थे। हुमैरा खिचड़ी पकाने चल पड़ी थी और उसके डैड उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे, मगर उसने बड़ी मुश्किल से घर वालों को समझाया कि अब वो काफी बेहतर हालत में है। हुमैरा के चेहरे से खुशी फूट रही थी। हुमैरा की माँ भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी, उनकी तारीफें कर रही थी। लड़के ने वीडियो कॉल पर सिवाय हुमैरा के सबसे बात की थी। हुमैरा को रमीज की बहन ने अपने मोबाइल पर उसकी फोटो और वीडियो दिखा दी थी। सब घर वाले बहुत खुश थे और पुरजोश भी। हुमैरा रात देर तक रमीज की तारीफें करती रही थी कि वो बहुत स्मार्ट है। वैसे वो हमेशा जल्दी सो जाती थी क्योंकि वो अक्सर तहज्जुद के लिए भी उठती थी, मगर आज उसे नींद न आ रही थी। वो उसे बताने लगी कि वो शुक्राने की नफल पढ़ेगी कि उसे इतना खूबसूरत मंगेतर मिला है और घर वाले भी काफी अच्छे सुलझे हुए और पढ़े लिखे लोग हैं। हुमैरा इतनी भोली थी कि वो झट मान गई कि रमीज नाम का उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और इसके लिए किसी रमीज नाम के रिश्ते का आना महज इत्तेफाक था। अगले हफ्ते निकाह हो गया और उसकी बहन निकाह की तस्वीर बना रही थी। उधर अबिहा परेशान थी कि अब रमीज पर सब हकीकत खुल जाएगी। निकाह तो हो चुका। जब वो निकाह करके फारिग हुए तो रमीज को एक जरूरी क्लाइंट से मिलना था। वो निकाह करके जल्दी से चला गया। अबिहा ने इस मौके से फायदा उठाकर छत पर जाकर रमीज को अनब्लॉक करके कॉल की। वो बहुत हैरान हुआ, फिर होश हो गया कि चलो अब तो निकाह हो चुका है। जब अबिहा ने उसे सारी तफसील बताई तो वो तड़प गया। बोला, तुम अपनी बहन की मोहब्बत में मजबूर हो सकती हो मगर मैं नहीं।
बड़ी मुश्किल से उसे अभी उस वक्त हकीकत बता देती तो तुम्हारी अम्मी फिर भी मुझे कबूल ना करती, क्योंकि वो हुमैरा को पसंद कर चुकी थी। अब हमारे मिलने का एक ही रास्ता है कि तुम खामोशी से बगैर किसी को बताए शादी कर लो, बाद में हम शादी कर लेंगे। अभी तुम शादी को मत टालो, वरना हमारे घर वाले तुम लोगों से नफरत करेंगे और हमारा मिलना फिर से बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मिन्नतों वास्तों के बाद वो इस शादी पर राजी हुआ। अबीहा ने फिर उसे ब्लॉक कर दिया। घर वाले रमीज के रवैये को ना समझ सके। पहले वो मजनू बना हुआ था और हर वक्त शौकी के मूड में रहता था, बहुत खुश रहता था, हर चीज में दिलचस्पी लेता था, लेकिन अब हर वक्त संजीदा सा उदास सा लगता है। शादी की किसी शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। घर वालों से कहता कि मुझे इन चीजों की क्या समझ, आप लोगों को जो ठीक लगे वो करें। हुमैरा की शादी का सुनकर अबीहा के भाई भाभी अपनी फैमिली के साथ यूके से शादी अटेंड करने आ गए थे। अबीहा की दोनों बहनें भी आ चुकी थी। अबीहा के भाई ने शादी का सारा इंतजाम अपने जिम्मे ले लिया, क्योंकि अचानक से अबीहा के वालिद की बहुत तबीयत खराब हो चुकी थी। 2 दिन वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल रहे थे। अबीहा हर वक्त अपने डैड के साथ रहती, उनकी देखभाल करती। वो बाप की अचानक बीमारी में अपना गम भूलकर बाप की तीमारदारी में लगी रहती। उसके डैड अब कदरे बेहतर होने लगे थे, अपने पोते पोती से दिल बहलाते रहते। बेटा भी वक्त निकाल कर उनका हाल अहवाल पूछने आ जाता। पोता पोती अपने धदियाल में आकर बहुत खुश थे और वापिस जाने का नाम नहीं लेते थे। शादी के एक हफ्ते बाद अबीहा के बाप ने बेटे को गमगीन लहजे में कहा था कि बेटा अब वापिस आ जा, अब तेरे और तेरे बच्चों के बगैर दिल नहीं लगता। उसकी बीवी का मेकअप भी पाकिस्तान में था। उसने भी कहा कि अब अंकल को आराम करने दो और ऑफिस और फैक्ट्री तुम आकर संभाल लो। बेटे ने वादा किया कि शादी के फौरन बाद वो यूके अकेला जाकर सब कुछ समेट कर वापिस आ जाएगा और इधर अपने बाप का बिजनेस संभालेगा। अबीहा अपने भाई के बच्चों पर जान देती, वो भी उसके साथ बहुत मानूस हो गए थे। अबीहा के पास ही सोने लगे। हफ्ते को शादी थी। अबीहा हुमैरा को पार्लर से दुल्हन तैयार करवाकर इधर उधर मसरूफ हो गई। जब दुल्हा दुल्हन को इकट्ठा बिठाया गया, दुल्हा चेहरे पर गहरी संजीदगी लिए अबीहा को नजरों से तलाश करने लगा, मगर वो छुपकर खड़ी रही। यहाँ तक कि रुखसती का वक्त आन पहुंचा तो वो वॉशरूम चल पड़ी। जब रुखसती हो चुकी तो वो अंदर काफी रोती रही, बाहर आकर भी रोती रही, क्योंकि फिर फूफो बहुत रो रही थी। इस बात के उसके डैड भी उसे गले लगाकर जारों की तार रोने लगे। रिश्तेदारों ने बड़ी मुश्किल से उन सबको चुप करवाया। जब हुमैरा दुल्हन बनी, अपने दुल्हा का इंतजार कर रही थी कि दुल्हा अंदर आया। हुमैरा उसकी प्यार भरी बातों के मुंतजिर थी, मगर उसकी जुबान तो जहर उगल रही थी। उसने बताया कि वो किसी और को पसंद करता था, मगर उस लड़की ने ये शर्त रखी कि पहले मैं तुमसे शादी करूं तो अगले दिन तुम मेरा रिश्ता लेकर उसके पास जाओगी। अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हुमैरा बहुत दुखी और मजबूर हो गई और कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊंगी। हुमैरा सोचने लगी कि क्यों आखिर उस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की सोची। अबीहा सोच रही थी कि उसके डैड अपनी बहन और भांजी से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहन इस मौके पर अपने शोहर को याद करके बहुत रोती थी कि काश वो जिंदा होते और अपनी बेटी को अपने हाथों से रुखसत करते। डॉक्टर ने बताया था कि ये बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, तो अबीहा ने फुप्पो को उनके सामने रोने से मना किया और अबीहा की माँ ने भी उन्हें मना किया था कि मेरे सुहाग का कुछ ख्याल कर लो। तब हुमैरा की माँ ने भाई के सामने रोने से गुरेज कर दिया था। वो किचन में काम वाली मासी की लड़की के साथ खड़ी अपने डैड के लिए सूप बना रही थी कि बातों बातों में वो लड़की बोली, अबीहा बाजी, निकाह वाले दिन जब आप छत पर गई थी तो आपके डैड आपको ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि बाजी को छत पर जाते देखा था। वो आपके पीछे गए थे, वापस आकर वो बेहोश होकर गिर पड़े थे। अबीहा ये सुनकर हैरान और परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि क्या उसके डैड ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उफ खुदाया, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं हुमैरा के शोहर को उसकी शादी के बाद अपना रिश्ता लाने के लिए कह रही हूँ। हकीकत जान गए हैं और शायद वो इसीलिए इतने दुखी भी हो रहे थे और इतना स्ट्रेस लिया कि बीमार हो गए। अब वो क्या करे?
उसे उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो सिर्फ उसे हुमैरा से शादी करने के लिए एक बहाना कर रही थी। जब शादी हो जाएगी तो वो खुद ही उसकी तरफ रागिब हो जाएगा और मौके की तलाश में थी कि कब वो अपने डैड से छुपकर बात क्लियर करे। वो डैड को सूप पिलाने के बाद बहाने से उन्हें छत पर ले गई कि डैड चले, छत पर चलते हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। जब वो दोनों छत पर पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए तो अबीहा ने डैड के करीब जाकर रोते हुए आहिस्ता से कहा, डैड मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। आप हमेशा मुझे कहते थे कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। फिर उसने सारी बातें अपने डैड को बता दी कि वो उससे फोन पर भी राब्ते में थी। जब बॉयफ्रेंड बनाया तो बताते हुए शर्म आ रही थी। फिर ये सब हो गया। उसके बाप ने रोते हुए कहा कि मैं तो इसलिए पूछता रहता था कि कहीं मेरी बेटी किसी लड़के के चक्कर में पड़कर अपने आप को बर्बाद ना कर ले, इसलिए मुझे पता चले तो मैं उसे बचा सकूं। वो उसे गले लगाते हुए बोले, मुझे अपनी बेटी के दिल टूटने का भी बहुत गम है। अगर तुम निकाह से 1 मिनट पहले भी बता देती तो लड़का तो राजी ही था, वो अपने घर वालों को भी मना लेता। तुमने छुपा कर गलत किया, अब वो उसको नाखुश रखेगा। इस तरह 3 जिंदगियां दाव पर लग गई। अबीहा ने कहा कि वो अपनी बहन का घर उजाड़ने का कभी सोच भी नहीं सकती। वो रमीज को साफ कह देगी कि वो उससे नहीं किसी और से प्यार करती है तो वो मायूस होकर खुद ही हुमैरा की तरफ लौट जाएगा। उसने अपने डैड को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, ये सब किस्मत के खेल है। डैड आपसे एक दरख्वास्त है कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, प्लीज आप अभी मेरी पीएचडी कर लूंगी तो फिर आप जहाँ कहेंगे मैं शादी कर लूंगी। उसके बाप ने कहा ठीक है। वो शुक्रिया कहकर बाप से लिपट गई। इतने में उसकी माँ और फुप्पो भी उनको ढूंढती हुई छत पर आ गई। वलीमे के बाद हुमैरा को रमीज ने कहा कि अब तुम्हें मेरा रिश्ता लेकर जाना होगा वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हुमैरा का शोहर जब उसे रिश्ते के लिए उसके मैके ही लेकर आया तो उस पर जैसे आसमान टूट पड़ा। जब उसने अबीहा का बताया कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, सिर्फ नाम की वजह से गलत फहमी हो गई और अबीहा की जगह हुमैरा समझ बैठा और निकाह की फोटो देखकर मुझे हकीकत पता चली। तुमसे शादी करने के लिए भी अबीहा ने ये शर्त रखी कि पहले मैं तुमसे शादी करूं फिर वो मुझसे शादी करेगा। अब तुम उसे जाकर ये पैगाम दो कि वो अपना वादा पूरा करे और मेरे साथ शादी करे, क्योंकि मैं उससे शदीद मोहब्बत करता हूँ और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। हुमैरा मेकी आई तो सब बहुत खुश हुए। हुमैरा की माँ ने दामाद के लिए खाने का बहुत एहतमाम किया। वो हुमैरा से इशारे से पूछ रहा था कि बात की। हुमैरा ने उसे बताया कि खाने के बाद वो अबीहा और आपको आइसक्रीम खिलाने के बहाने बाहर लेकर जाएगी, तो उस वक्त आप दोनों आमने सामने बात कर लेना। जब वो लोग खाना खा चुके तो हुमैरा सबसे बोली कि रमीज मुझे और अपनी साली को आइसक्रीम खिलाने लेकर जाना चाहते हैं। उधर से हो सकता है हम लोग शॉपिंग पर भी चले जाए और देर भी हो सकती है, शायद खाना रात का बाहर खा ले। हुमैरा की माँ ने पुरशौक लहजे में बेसब्री से पूछा, हुमैरा बेटी क्या रात दामाद के साथ रुकोगी? हुमैरा बोली, मामा अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। अबीहा की माँ बोली, अरे रुकना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि ये दोनों जहाँ भी रहे खुश रहे। रमीज ने गाड़ी निकाली। हुमैरा पीछे अबीहा के पास आकर बैठ गई। अबीहा ने उसे जबरदस्ती आगे भेजा। वो लोग एक पार्क भी चले गए जहाँ एक गोशे में कोई मौजूद ना था। जब रमीज ने अबीहा से कहा कि ये सब एक गलत फहमी की बिना पर हुआ है तो अबीहा ने हंसकर तंज कहा, ए मिस्टर, ये गलत फहमी आपको हुई है, मुझे नहीं। मैंने जरा सा मजाक क्या कर दिया? आप तो हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए। मैं शादी करके अपनी आजादी सल्ब नहीं करना चाहती। बेवकूफ लड़कियां शादी करके फंस जाती हैं और फिर सारी जिंदगी गुलामी को अपने गले का हार बना लेती हैं। मैं बाज आई बाबा ऐसी जिंदगी से। मैं तो अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ और पीएचडी करना चाहती हूँ, उसके बाद जॉब करूंगी। तुम किसी खुशफहमी की बिना पर अच्छी खासी अपनी प्यारी बीवी को खो ना देना, क्योंकि मैं तो अपनी बहन के शोहर से शादी तो दूर की बात अफेयर करने का भी सोच नहीं सकती आज, मगर दोबारा माफ नहीं करूंगी। रमीज को ये कहकर गुस्से से वहां से चल पड़ी। रमीज उसे जाता देखता रहा और आंखों में से आंसू छुपाकर हुमैरा से बोला, जल्दी बैठो, घर चलो। हुमैरा जल्दी से आगे बैठ गई। जब वो लोग घर पहुंचे तो रमीज सीधा अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह बेड पर गिर गया। हुमैरा की सास ने हुमैरा को देखा मगर बेटे को जाते ना
देखा। हुमैरा से पूछने लगी, तुम लोग वापिस आ गए? मैंने समझा कि अभी रात उधर ही रुकोगे। हुमैरा ने कहा, वो इनको कोई जरूरी काम याद आ गया था। वो कह रहे थे कोई मुझे तंग ना करे। सास ने कहा, ठीक है, खाना बना हुआ है, भूख लगे तो खा लेना। हुमैरा कमरे में आई तो रमीज निढाल सा नीम बेहोश पड़ा हुआ था। हुमैरा उसके लिए दूध का गिलास लेने किचन में चली गई ताकि उसमें नींद की दवा मिलाकर दे सके, ताकि रमीज सकून से सो सके। सास ने सोचा बेटे को एक नजर देख ले, तो जब वो करीब पहुंची तो सुना वो कह रहा था, अबीहा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम झूठ बोलती हो, तुम अब भी मुझे चाहती हो। माँ के पांव तले से जमीन निकल गई। इतने में हुमैरा दूध लेकर आ गई। सास सख्त परेशान थी, उसे सारी कहानी समझ आने लगी थी। बेटी को निकाह से पहले बहुत खुश होना, फिर निकाह के बाद उदास रहना। जब हुमैरा की सास ने उसे पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये अबीहा का क्या चक्कर है? हुमैरा ने रोते हुए उन्हें सच बता दिया। सास ने कहा, अब तुम ही उसे अबीहा भुला सकती हो। रमीज की माँ रोते हुए शोहर को रोते हुए बताने लगी कि अनजाने में हमने बेटे के साथ ज्यादती कर दी, लड़की बदल गई, अब हम अबीहा को भी ब्याह कर ले आएंगे। ये उसकी सगी बहन नहीं है, कजन है, शनी है। अब यही इसकी किस्मत में थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा, इसमें हुमैरा का क्या कसूर। और अबीहा किसी की बेटी है, उसका नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करना। अब उसे हुमैरा को उसका हक देना पड़ेगा। वो बोली, ये दूध लेकर जा रही हूँ, इसमें नींद की दवा मिलाई है ताकि वो पूरी नींद सो सके। वो अबीहा अबीहा करता रहा और वो उसे अपने आप को अबीहा बताती रही। सुबह रमीज के बाप ने उसे बहुत समझाया कि अबीहा नहीं, हुमैरा तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई थी। अब अबीहा का नाम लेकर उसे बदनाम मत करो और अपनी बीवी का दिल मत तोड़ो, क्योंकि इसमें उसका क्या कसूर। रमीज ने वादा किया कि वो हुमैरा को उसका हक देगा। वो हुमैरा से ना चाहते हुए भी बाप की नसीहत के पेशे नजर उससे अच्छा बर्ताव करने लगा। उसे मैके लेकर जाता, अबीहा उसे नॉर्मल तरीके से सलाम करती, वो आहिस्ता से जवाब देता, हुमैरा अब माँ बनने वाली थी। उसे मैके लाता, उसका बहुत ख्याल रखता। अबीहा उसे रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाती, क्योंकि रमीज बिजनेस टूर पर अमेरिका चला गया था। अबीहा हर दम उसका ख्याल रखती। रमीज की माँ ने अबीहा और हुमैरा की माँ से दरख्वास्त की कि आप दोनों इधर ही आ जाएं, क्योंकि हुमैरा का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा था। रमीज फोन पर उसकी कैफियत दरियाफ्त करता रहता था। अबीहा सगी बहन की तरह उसका ख्याल रखती। पूरे घर का निजाम अबीहा ने संभाल रखा था। अबीहा से रमीज की माँ मुतासिर होने लगी। हुमैरा एक बच्ची को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। सब पर कयामत टूट पड़ी। अबीहा बच्ची को पालने लगी। वो उसे अपने घर ले गई और उसमें मगन हो गई। रमीज 2 साल बाद पाकिस्तान लौटा। अबीहा उसे माँ बाप के बारे में बताती रहती, मगर फिर भी उसे मामा कहती। रमीज आया तो अबीहा ने बच्ची भिजवा दी कि बाप खुद संभाले। बच्ची को अबीहा की आदत थी, मगर अबीहा कठोर बन गई। बच्ची हरदम उसे याद करती। रमीज के वालिदैन ने अबीहा का रिश्ता मांगा, मगर अबीहा ने इनकार कर दिया। सब उसे मनाते, मगर वो ना मानती। रमीज ने उससे माफी मांगी और उसका शुक्रिया अदा किया। अबीहा इनकार की वजह पूछी तो वो चिल्लाने और रोने लगी कि हुमैरा का क्या कसूर था जो तुमने उसे प्यार और वक्त ना दिया, जब उसे तुम्हारी सख्त जरूरत थी। वो मरते दम तक तुम्हारी राह देखती रही। रमीज ने कहा, मुझे हुमैरा ने जबरदस्ती भेजा था, फिर मैं उसकी डिलीवरी के वक्त आना चाहता था, मगर वो ना मानी कि ये हमारे बच्चे के मुस्तकबिल का सवाल है, आपकी तरक्की जरूरी है। मेरे पास पूरा खानदान है, मगर अबीहा को कोई खास यकीन ना आया। बच्ची गम से बीमार होकर अस्पताल इमरजेंसी में चली। डॉक्टर ने उसकी जान का खतरा बताया। अबीहा ने सुना तो तड़प गई और भागी रोती हुई हॉस्पिटल पहुंची। उसे उस वक्त रमीज बहुत लाचार और बेबस लगा। उसने सोचा, हुमैरा से ज्यादा इन लोगों को मेरी जरूरत है। मैं हुमैरा के पीछे कब तक इनको सजा देती रहूंगी? बच्ची भी तो हुमैरा की ही है जिसे मेरी जरूरत है। फुफ्फो ने हाथ जोड़कर रोते हुए उसकी मिन्नत की कि मेरी हुमैरा की निशानी को माँ का प्यार दे दो।
अबीहा ने हाँ कर दी। जब वो दुल्हन बनी हुई थी, अबीहा के डैड उसे देखकर खुश हो रहे थे। रात को रमीज कमरे में आया तो दोनों हुमैरा को याद करके रोने लगे। फिर जब जी भर के रो चुके, अबीहा को रमीज का हुमैरा के लिए रोना मुंतशिर कर गया। दोनों ने पास सोई बच्ची को प्यार किया। रमीज ने अबीहा से कहा, काश हम कभी जुदा ना हो। रमीज की माँ ने सोचा कि पहली बार जब उसने अबीहा को देखा तो उसे अबीहा के फैशन जरा ना भाई और दिल में सोचने लगी कि इसे कौन कबूल करेगा। ऐसी लड़की जो पोलर ही जाती रहेगी, घर क्या बसाएगी। उन्हें तो हुमैरा बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सादा लिबास में अपने सर पर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े बैठी हुई थी। मगर जब हुमैरा ब्याह कर आई तो उसमें भोलापन तो था, मगर घरदारी का कोई शऊर ना था। जितना जितना सास उसे काम कहती वो उतना ही करती। सास को उसके आने से उल्टा दिमाग खपाना पड़ा। फिर उसे शोहर के काम करने की फिक्र भी ना होती। रमीज माँ को ही कहता कि मेरे कपड़े मैले हैं, धुलवा दीजिएगा। फिर वो हामला हो गई और रमीज अमेरिका चला गया तो अबीहा और उसकी फुप्पो उनके यहाँ रहने आई। हुमैरा की माँ बेटी को पाँव नीचे उतारने ना देती, उसके बहुत लाड उठाती। इसके बरअक्स अबीहा सुबह उठकर रमीज के वालिदैन को सलाम करती, फ्रेश जूस बना कर देती, सारे घर की तरफ ध्यान देती। हर काम की जिम्मेदारी उसने उठा ली। जरूरी नहीं है कि कोई फैशन करने वाली लड़की अच्छी बहू नहीं बन सकती। रमीज अब खुश और मुतमईन नजर आता है। उसने अबीहा से कहा कि मेरी मामा को सादा रहने वाली लड़कियां पसंद है, तो वो सादा रहने लगी। रमीज की माँ ने कहा, बेटा रमीज, अबीहा को जिस तरह रहना है रहे, जीन्स पहने मगर ऊपर लॉन्ग शर्ट हो, ससुर के सामने जाए तो दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर जाए और बाल कटवाने का शौक है तो उसके सामने सर पर दुपट्टा रखे। अबीहा बहुत खुश हुई। उसने सास की बातों को पल्ले बांध लिया। काफी अरसा उसके ससुर को पता ही नहीं चला कि उसके बाल कटे हुए हैं। जब वो हामला हुई तो उसने घर के कामों से मुंह ना मोड़ा। तबीयत खराब होने के बावजूद घर के सारे काम मुलाजमा से वक्त पर करवाती, कपड़े वक्त पर धुलवाती, इस्त्री खुद करती, खाना खुद पकाती, रोटी खुद पकाती। सास उसे आराम करने का कहती तो वो कहती, मामा जितना काम करूंगी तबीयत अच्छी रहेगी, भली रहूंगी, करूंगी तबीयत अच्छी रहेगी, भली रहूंगी, वरना सुस्त हो जाऊंगी और सोच सोच कर ही तबीयत भोजल रहेगी। अल्लाह ताला ने उसे यके बाद दिगरे दो प्यारे प्यारे बेटों से नवाजा, मगर उसका प्यार हुमैरा की बेटी के लिए कम ना हुआ, बल्कि अपने बेटों से ज्यादा उससे करती। सब हैरान होते कि ऐसी सौतेली माँ भी हो सकती है। जब बच्ची बड़ी हुई तो उसे पता चला कि अबीहा उसकी सौतेली माँ है, तो वो उसके गले लगकर खूब रोई और बोली, ममा काश मैं आपके बतन से पैदा हुई होती, इतनी अच्छी माँ पर मुझे वैसे ही फख्र है। फूफो कहती, अगर हुमैरा भी जिंदा होती तो इतनी अच्छी तरबियत इसकी ना करती, उसे प्यार प्यार में घरदारी सिखाई ताकि आगे जाकर उसे मुश्किल पेश ना आए। लड़के भी बहुत सुलझे और फर्मा बरदार थे। रमीज के वालिदैन अबीहा को दुआएं देते ना थकते और फुप्पो उसे दुआएं देती रहती और सबकी दुआएं उसे लगी और उसकी औलाद उसकी फर्मा बरदार निकली। और रमीज ने ऐसी बीवी मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्र